द गुप्ता किंग्स रूल्ड ओवर लेसर किंग्स इन द अंपायर, इन देयर अंपायर। सही है गलत है? गुप्ता किंग्स रूल्ड ओवर लेसर किंग्स in the empire. This is Gumpa Empire, and there are small kings who were subordinate to them. Who were? So this one is correct. First statement is correct. Why? Because this was the period of feudalism. Feudal system has evolved. So due to feudalism, the feudal lords are there. They are small kings. So this is first one is correct. Second one, like the Mauryans, the Gupta kings adopted pompous title such as Parmeshwara, Maharaja and Param Bhattara. So these titles were adopted by Guptas. We know it. Maharaja Chandragupta. कहते हैं ना महाराजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. So this one is correct. Now, like Mauryans, did Mauryans take these titles or not? They didn't take these pompous titles. Getting the point? They are Samrat, not the Maharaja Dhira. They didn't compare themselves with the gods. Devanam Piyadasi, beloved of God. They didn't say that we are like gods. They said that, Ashoka said, I am beloved of God. It means that Ashoka was very strong from within. Mauryans were very strong from within. They are emperors. They didn't have any subordinate rulers behind them. Getting the point? एक छत्र राज्य है, फ्यूडलिज्म नहीं है. तो आप अगर राजा हैं, आप महाराजा हैं और आपके अंदर बहुत राजा हैं, तो आप क्या खाक राजा हैं? गेटिंग द पॉइंट? राजा का मतलब क्या हुआ? राजा का मतलब हुआ अकेले. ऑल द पावर शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड. इफ यू आर महाराजा, इट मीन्स सो मेनी राजाज आर सबऑर्डिनेट टू यू. इट मीन्स दैट योर पावर शुड बी एब्जॉर्ब बाय देम. गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए गुप्ता के समय में पॉम्पस टाइटल लिया गया. मौर्यों को जरूरत, क्लियर होगी बात? गुप्ता का टाइम क्या है? फ्यूडलिज्म का टाइम है. तो अशोक का टाइम फ्यूडलिज्म का टाइम नहीं है. यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर है. फ्यूडल शक्तियां अभी पैदा नहीं हुई हैं. और फ्यूडलिज्म अभी हम देखेंगे कब आएगा. व्हेन फ्यूडल सिस्टम इवॉल्व इन एंशिएंट पीरियड, फ्यूडलिज्म ऑलवेज कम्स विथ लैंड ग्रांट्स. किसके साथ आएगा? एंड लैंड ग्रांट्स का जो पहला एविडेंस है वो सातवाहना इंस्क्रिप्शन देता है. एंड सातवाहना आर इन पोस्ट मौर्य पीरियड. अभी ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आगे के टॉपिक्स के, इसलिए थोड़ी दिक्कत आपको. बात समझ रहे ना? तो फ्यूडल सिस्टम का जो बिगिनिंग होगा दैट वुड बी हैपनिंग इन द पोस्ट मौर्य पीरियड. गुप्ताज आर सपोज टू बी द फ्यूडल्स ऑफ कुशानाज. कुशान जो थे वो भी पोस्ट मौर्य पीरियड के हैं. तो कुशानों के फ्यूडल कौन हैं? गुप्त हैं. गुप्ता लोग कौन है? कुशानों के फ्यूडल्स हैं. तो समुद्रगुप्ता इज सपोज टू बी द मोस्ट है ना इंपॉर्टेंट और पावरफुल लीडर्स ऑफ द टाइम. है ना? V.A. Smith has said that Napoleon, he was known as the Napoleon of India. Napoleon, जो Napoleon came very later. So why he is known as Napoleon of India? Because of his expansionist policy, because of his continuous conquest in the battlefield. Napoleon. So he carved the empire, but even he was not able to suppress all the rajas or feudal lords. Getting the point? So that's why he was great, but he accepted the system of confederacy. Means Gupta Maharaja would be there here, but the subordinate rulers would be there. He conquered the parts of South India, but didn't annex with Gupta Empire, but it was not feasible to rule at that point of time. तो समुद्रगुप्त इसलिए महान नहीं है कि उनका साम्राज्य बड़ा था. The empire of Guptas were very lesser than the Mauryans. छोटा होगा साम्राज्य. गुप्तों का साम्राज्य किससे छोटा है? And the empire of Harshvardhana was lesser than Guptas. But Harshvardhana is supposed to be one of the great rulers of India. क्यों? क्योंकि जब बाउंसिंग विकेट पर आप क्रिकेट खेलते हैं, है ना, एक तो वहां खेलिए जहां पे फ्लैट विकेट हो या ठीक विकेट हो, और एक बाउंसिंग विकेट है. तो इसलिए हर्षवर्धना को इसलिए नहीं महान मानते हैं कि ही कार्व्ड अ वेरी बिगर एम्पायर.
But at his time, feudalism was very strong. So to have the coordination with feudalism or to some extent suppressing the feudalism was very tough task. तो इसलिए हर्षवर्धन को मानते हैं महान शासक है. तो सम्राट और महाराजाधिराज में अंतर समझ गए. महाराजाधिराज क्या है? पॉम्पस टाइटल्स है. अब मान लीजिए बहुत दुबला पतला आदमी है, आप देखते होंगे टेलीविजन आदि पे, स्क्रीन पे, और जोर से उसका प्रहरी चिल्लाता है, सावधान महाराजाधिराज पधार रहे हैं. राजा अंदर से क्या है? कमजोर है, लेकिन उसको मजबूत किया जाता है. तो जब भी टाइटल बड़ा होता है, क्या होता है? टाइटल बड़ा होगा, शक्ति छोटी होती है. नाम बड़े दर्शन छोटे, आपने सुना होगा, बस इसी से निकला हुआ ये. तो इसका क्या होगा? नीचे वाला गलत हो गया, ऊपर वाला सी आंसर हो जाएगा. लिख लीजिए. तो ऐसे समझना, इतना आसान नहीं है. ठीक है, ये लेवल जिस दिन आ जाएगा यूपीएससी खुद बुला लेगी कि अब आ जाइए. ठीक है, बट इसको लाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन काम है. ऐसे आप कुछ भी पढ़ते रहिए, फोमो का शिकार होइए, लेकिन लास्ट में यही करना पड़ेगा.